class, we discussed about the mediastinum, right? Pleural cavity, thoracic cavity. So, mediastinum, I want to describe the mediastinum. Mediastinum is the space between two pleural sac, right? And this space is not a simple space in the middle part of body. If we see the animal is in quadruped animal, the lungs are present like horizontally. जैसे आप अपने में इमेजिन करते हैं, then there are we have the vertical upright down situation. So the position of lung here is different. But in case of animals, the lungs are lying horizontally. Horizontally in the sense, मतलब trachea के in the left side and right side of thoracic cavity. ठीक है? So here, if we see the mediastinal space, then it is whole space starting below the vertebral column up to the sternum, right? So this space is not confined only in the middle part of the thoracic cavity. It is extending from vertebral column to the level of sternum. So yesterday I told you about the various part of pleura, costal, diaphragmatic, mediastinal pleura, right? And in this diagram also, this is the, we can say, we are seeing from the मतलब from the posterior part. तो schematic एक डायग्राम बनाया हुआ है प्लूरा और पेरिकार्डियम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना? So here also you can see अलग अलग पार्ट को डिनोट किया है, पेराइटल प्लूरा एंड विस्ट्रल प्लूरा. खैर ये डायग्राम थोड़ा टफ जाएगा. In previous class I explained all the part of pleura. So this is easy diagram to explain the pleura, right? So here we can see the pleura is interrupted at the level of hilus and it is divided into visceral and parietal. Visceral pleura invests the lung and parietal pleura has different parts, right? Actually visceral pleura को इन्हें रेड कलर से ही मतलब एज सच देखा जाए तो मतलब अगर हम यहाँ देखें तो lungs actually they are getting to invaginate inside the pleural sac. ये मतलब एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट इसमें है कि अगर हम देखेंगे तो here is the this one is the pleural sac and in the pleural sac this is parietal pleura, there is investing of lung over this and then after it get expanded, ठीक है? So here we say there are different parts of pleura. या तो कल हो गया था, है ना? क्यूपुला प्लूरा के बारे में कल एक्सप्लेन किया था. मीडियास्टाइनम से ही स्टार्ट करना था. तो I told you the mediastinum can be divided into three parts: cranial mediastinum, middle mediastinum, and caudal mediastinum. That is based on the area in front of the heart is known as cranial mediastinum. The area at the level of heart is the middle mediastinum. And the area caudal to the heart is the caudal mediastinum. ठीक है ना? Where the heart is present? कहाँ होगा heart? In middle mediastinum. बिल्कुल सही, middle mediastinum. ठीक है ना? All the structures present in thoracic cavity, they are present in the mediastinum except lungs, which are present in respective pleural sac, and caudal vena cava and right phrenic nerve, which is traversed along the right pleural sac. ये स्टेटमेंट बिल्कुल लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा कि कुछ भी प्लूरल सैक के अंदर नहीं है लंग्स के अलावा. And in the right pleural sac there is presence of caudal vena cava and right phrenic nerve. And rest of all the things they are present in the mediastinal space, right? Then अगर हम mediastinum की बात करें,
So there are some species differences regarding mediastinum. In case of horse, the caudal mediastinal partition is very delicate. Ventral to esophagus, it is fenestrated and thus the pleural cavities are in communication with one another. इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा समझो. इस डायग्राम से समझो, लंग्स इतने दूर दूर नहीं होते. पहली बात, जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया है ना, इतने डिस्टेंटली प्लेस नहीं होंगे लंग्स. अभी लंग्स भी दिखाऊंगी मैं आपको. They are very close to each other. So this which you are seeing here, the mediastinal pleura, it is this mediastinal pleura of both the side. ठीक है ना, यहाँ की और यहाँ की दोनों जो mediastinal pleura है, they are in close opposition. mediastinal pleura क्या है, दोनों साइड, दोनों ही तरफ का अगर हम देखेंगे, so here they are in the close opposition. So if in case of horse, it is fenestrated in caudal side. ये लिखा हुआ ना, the caudal mediastinum partition is very delicate. Ventral to esophagus, it is fenestrated. Fenestrated का मतलब क्या है, perforation होना, fenestra, ठीक है ना. And thus the pleural cavities are in communication with one another. अब इसका practical significance क्या है? Whenever the surgery is performed, you all are well known about this, that the lungs are kept in pleural cavity in under negative pressure. पता है सभी को, है ना? If we open the cavity, then the lungs will be collapsed, है ना? क्योंकि lungs जो है pleural cavity के अंदर negative pressure में हैं. अगर आपने pleural cavity को खोला, तो they will be come into the environment, they in contact of environment, and the lungs become collapsed. ठीक है? So that if in case of in large animal, whenever the surgery of thoracic cavity has to be performed, there is requirement of positive pressure ventilation system. अभी आप लोग जब सर्जरी में जाएंगे तब भी पढ़ेंगे आप, ठीक है ना. Positive pressure ventilation system is required for any thoracic surgery. अब थोड़ा सा समझना आप लोगों को, अब इसको थोड़ा सर्जरी के एस्पेक्ट से सोचना है, तब आपको ये चीज समझ में आएगी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ उसकी यूटिलिटी. आपके हाथ का ऑपरेशन करना है, आपके पैर का ऑपरेशन करना है, इतना बड़ा इशू नहीं है. एक जनरल एनेस्थीसिया दिया, अगर बहुत बड़ा, इफ इट रिक्वायर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, या लोकल एनेस्थीसिया, सर्जरी कैन बी परफॉर्म. बट इफ यू वांट टू हैव द सर्जरी ऑफ thoracic cavity, thoracic cavity मतलब हार्ट का कर है, अगर आपने रिब केज खोला है, then there is required of endotracheal intubation, positive pressure ventilation is required, क्योंकि लंग्स काम नहीं करेंगे उस ड्यूरेशन में. और लंग्स अगर काम नहीं करेंगे तो जितने जो प्रोसीजर सर्जरी का ड्यूरेशन होगा उतने में एनिमल कोलैप्स हो सकता है. बात समझ मेरी आ रही है कि नहीं? यस मैम. हाँ, जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोगों ने सुना होगा बाईपास सर्जरी के बारे में, सुना होगा, है ना? है ना, बाईपास सर्जरी सुना होगा ना, ओपन हार्ट सर्जरी भी बोलते हैं. तो बाईपास सर्जरी कैसे होगा भाई? पहले तो वो रिब्स कटनी पड़ती है, रिब्स काटेंगे ना, तब तो थोरेसिक कैविटी ओपन होगा, फिर हार्ट को अप्रोच करेंगे. अगर एब्डोमिनल कैविटी ना, लंग्स विल डू इट्स वर्क. लेकिन अगर थोरेसिक कैविटी पे ही सर्जरी करना है, देन इट रिक्वायर द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सिस्टम. ठीक है, तो अगर अब देखो, अब लार्ज एनिमल में डील करना बड़ा टफ है. यहाँ पर अगर ये जरूर है कि जैसे नो डाउट अपना प्रोफेशन थोड़ा सा बड़ा टफ है काम करना. फील्ड में तो और भी सुविधाएं नहीं है, फील्ड में तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी अवेलेबल भी नहीं है. हाँ, ये जरूर है रेपुटेड कॉलेजेस के जो हॉस्पिटल हैं वहां जरूर मशीनरी अवेलेबल है सारी, और ऑपरेशंस अच्छे से हो जाते हैं. ठीक है, तो एक आपने एक इसमें देखो ऑब्जर्व करना है कि हॉर्स में क्या लिखा हुआ है. हॉर्स में लिखा हुआ है द कॉडल mediastinal partition is very delicate and it is fenestrated. ठीक है ना, it is ventral to esophagus, it is fenestrated. Thus pleural cavities are in communication with one another. मतलब अगर राइट प्लूरल कैविटी का ऑपरेशन किया
तो लेफ्ट लंग भी कोलैप्स हो जाएगा इन केस ऑफ हॉर्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्लूरल कैविटीज आपस में कनेक्टेड, कम्युनिकेटेड हैं थ्रू दिस फेनेस्ट्रेटेड मीडियास्टाइनल पार्टीशन। कि अगर आपने लेफ्ट साइड की थोरेसिक कैविटी को प्लूरल सैक को खोला हुआ है तो राइट साइड कोलैप्स हो जाएगा, या राइट साइड को खोला है तो लेफ्ट साइड भी कोलैप्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी? तो दैट इज व्हाई you cannot take a risk in case of horse. You require the positive pressure ventilation system. Now in case of ox, the pleural partition is relatively thick with no communication between pleural cavities. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट सैक को खोला है तो राइट सैक काम करता रहेगा। राइट प्लूरल सैक इज वर्किंग इफ यू आर ओपनिंग द लेफ्ट, या राइट आप खोल रहे हैं तो लेफ्ट इज वर्किंग। दोनों लंग एक साथ कोलैप्स नहीं होंगे। एक लंग पे अगर आप एक साइड अगर आप काम कर रहे हो तो दूसरी साइड का लंग तब तक काम करता रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? सो दैट इफ द ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी इज रिक्वायर मिनिमम टाइम, देन वी कैन परफॉर्म द सर्जरी विदाउट टेकिंग मच टाइम। ठीक है ना? और उसमें फिर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं नॉट यूजिंग द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सिस्टम, क्योंकि एक लंग काम करेगा। किसके केस में? ऑक्स के केस में। क्यों? क्योंकि मीडियास्टाइनल पार्टीशन इज कंप्लीट इन केस ऑफ ऑक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से पूछा जाता है, कंप्लीट मीडियास्टाइनल पार्टीशन इज प्रेजेंट इन विच स्पीसीज? देन इट इज ऑक्स इन विच कंप्लीट मीडियास्टाइनल पार्टीशन इज प्रेजेंट। इन केस ऑफ हॉर्स इट इज फेनेस्ट्रेटेड। Now in case of dog, the partition is very delicate but complete. तो यहां पर भी बोलते हैं कि इनमें भी डॉग के केस में भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि पार्टीशन बहुत डेलिकेट होगा। That is why also there is chances of getting collapse of both the lung. So in case of ox, there is tough mediastinal partition, so that if we open the one side of the thoracic cavity, one side of pleural sac, the another side of pleural lungs will not be collapsed, right? Now the contents of the mediastinum. Content बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन नहीं बनती है कई सारे बच्चों से, और आप लोगों को तो और दिक्कत आ रही है क्योंकि आप लोगों ने कुछ देखा भी नहीं है। क्योंकि बाकी तो बच्चे देखते हैं तो हम लोग काफी एक्सपेक्ट करते हैं उन लोगों से कि भाई आपने तो सब देखा हुआ है, तो देख के तो चीजें और जल्दी समझ में आती हैं। फिर भी स्टाइनम मतलब हार्ट के आगे वाला स्पेस। ठीक है? अब इस स्पेस में क्या क्या होगा ये सब हमने सोचना है और सोच के फिर बोलते हुए लिखते जाना है। ऊपर से अगर चले तो लॉन्गस कोलाई मसल्स, इट इज दिस मसल इज प्रेजेंट अंडर द वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक वर्टिब्री। तो लॉन्गस कोलाई मसल को कहां क्या बोला है? मीडियस्टाइनल स्पेस में बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ये अंदर होती है थोरेसिक कैविटी, मतलब वेंट्रल टू वर्टिब्रल बॉडीज द लॉन्गस कोलाई मसल इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड ओवर हियर। ठीक है? तो क्या हो गया? कौन? लॉन्गस कोलाई मसल हो गया वन। देन ईसोफेगस, ट्रैकिया, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है ना? क्योंकि क्रेनियल मीडियस्टाइनम की बात हो रही है ना, तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होगा इस तरफ। अगर हम मिडिल मीडियस्टाइनम की बात करेंगे तो फिर एरोटा की बात आ जाएगी। ठीक है? और रूट आ जाएंगे मेन सारे ट्रंक्स के इन द मिडिल मीडियस्टाइनम। ठीक है? तो ये आगे की तरफ की बात हो रही है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। Then cranial vena cava, from where the cranial vena cava is coming? Cranial vena cava is coming from the anterior part of the body. So it will be present in the cranial mediastinal space before opening into the heart. So cranial vena cava is there. Then sympathetic trunks. Of course, sympathetic trunk will be present over here because they have to supply the structures present in the mediastinum as well as to the heart also. Then vagus nerve. Vagus of course सभी ने पढ़ा हुआ है. Vagus is traversing, right? From the brain, it is emerging and running through the neck region, coming to the thoracic cavity, and then also going to the abdominal cavity. ठीक है ना? So vagus will be present over here. Phrenic nerves will be present over here. Then recurrent laryngeal nerves. अब recurrent laryngeal nerve अभी हमने कल ही डिस्कस किया है। recurrent laryngeal nerve. At what level the recurrent laryngeal nerve leave the vagus nerve? कहाँ से भाई vagus recurrent laryngeal nerve is the branch of vagus nerve. ठीक है ना? और आप लोगों ने सुना होगा ये चीज, because it is running opposite in the direction of the parent trunk, that is why it is called recurrent.
but it originates at the level of thoracic cavity and it has long course. पूरा course जो है it will be running throughout the neck and innervating the trachea as well as larynx, right? तो समझ में आ रही मेरी बात? तो here in the cranial mediastinum there will be presence of recurrent laryngeal nerve also. फिर अब यहाँ पर lymph nodes भी होंगे, है ना? lymph nodes, अच्छा एक बड़ा अच्छा सा फंडा है, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है. lymph nodes are always abundant in the region, in the area where the exposure to the environment or exposure for the infectious agent are more. जैसे digestive system की बात अगर अपन करें तो हम अनाप शनाप खाना खाएंगे, कहीं बैक्टीरिया उसमें होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, इतना खाना खाते हैं तो अब लड़ना तो हमारे सिस्टम को ही है ना. तो our system has huge lymph nodes along the whole digestive system. यहाँ से टंग से शुरुआत कर देते हैं हम, lingual tonsil, फिर pharyngeal tonsil, ठीक है ना. फिर अगर हम जाते हैं abdominal cavity, then mesenteric lymph nodes are distributed throughout the intestine, ठीक है ना. So we see the entire digestive system is supported by the lymph nodes, क्योंकि lymph node ही तो एक हमारी एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए लड़ती है against the infectious agent. Similarly, if we see the respiratory tract, then also because we are inhaling the air and air contain many organisms. So here also there is requirement of lymph nodes. तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, there will be the presence of tracheal lymph nodes along the trachea. Then there will be the presence of mediastinal lymph nodes, which will be present on either side of lung and trachea over here. बात समझ में मेरी आ रही? बच्चों सुन रहे हो ना? Yes, ma'am. So here, so in the mediastinal space, all throughout the region, there are presence of lymph nodes. So the lymph nodes which are present in the mediastinal space, cranial to in cranial mediastinum, they will be called as cranial mediastinal lymph node. ये middle mediastinum में भी मिलेंगे तो middle mediastinal lymph node में बोलेंगे. Caudal वाले को caudal mediastinal lymph node में बोलेंगे. Lymph nodes are present throughout the mediastinum, right? अब इसके बाद हम आते हैं, देखो हमने अभी नर्व की बात किया है, अभी हमने आर्टरी की बात में आर्टरी के सेंस में हमने ब्रेकियोसेफेलर ट्रंक का बात हो गया है. अभी लिम्फेटिक की चर्चा नहीं हुई है, लिम्फेटिक की चर्चा क्योंकि भाई लिम्फेटिक भी तो होगा यहाँ पर. तो लिम्फेटिक क्योंकि ये सारे आगे हार्ट में ओपन होना है और हार्ट कहाँ पर है? हार्ट किधर है? मिडिल मीडियास्टाइनम है. सभी को पता है थोरेसिक लिम्फ डक्ट पढ़ा होगा ना नीट में, बताओ भैया बच्चों. थोरेसिक लिम्फ डक्ट होता है, एक होता है कि नहीं? नहीं पढ़ा था मैम. लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पढ़ा है नीट में? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो सेक्रल पार्ट से लिम्फ कलेक्ट करके थोरेसिक उसको थोरेसिक डक्ट को देता है. हाँ बिल्कुल सही, थोरेसिक डक्ट को देगा. एक्चुअली आप लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पढ़ा है शायद, इसीलिए नहीं पता आपको. एक्चुअली क्या है, द लिम्फ शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी. लिम्फ को क्या बोलते हैं? मिडिल मैन ऑफ द बॉडी. लिम्फ इज द मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, मतलब ब्लड आर्टरीज में फ्लो हो रहा है, देन देयर विल बी द एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेसेस, है ना, बिटवीन द सेल्स. सो सम फ्लूइड is trapped inside the intercellular spaces, and from this spaces the fluids must be returned back to the arterial system, to the heart. So this will be backed by the lymphatic system, right? Lymphatic system here we see कहां से कहां पहुंच गए ऑल दो अपन, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा से डक्ट का नाम आया इसीलिए हम यहां पर पहुंच गए. तो cisterna chyli is also called as second heart, because it is a sac-like structure and reservoir of lymph. It is all the lymph collected from the posterior part of the body. किसके केस में? एनिमल के केस में बोलेंगे ना posterior part of the body. हमारे केस में नीचे वाले पार्ट से, ठीक है ना, मतलब दोनों hind limb, the area from the intestine, stomach, and it is present at the level lumbar area, ठीक है ना. फर्स्ट सेकंड थर्ड lumbar vertebra के बीच में cisterna chyli मिलेगा, ठीक. And then it is extension in the thoracic cavity is called thoracic duct, ठीक है ना. Then this thoracic duct ये आएगा आगे, वहां it will also meet with this thoracic duct is continued anteriorly
right? And then it open at the level of the heart, right? So here we see that the cranial mediastinum present the thoracic duct. Then thymus gland. अब thymus gland के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना होगा आप लोगों ने. Thymus is well developed gland during neonatal period. After this gland become degenerated and only its intrathoracic part is present. The cervical part of thymus get disappeared. सुना है thymus के बारे में? Yes, ma'am. सुना होगा ना. Thymus is also lymphoid structure, है ना. And अगर हम fetus में बात करें और या neonatal में बात करें तो thymus is extending along the whole length of the neck. पूरा ट्रेकिया के दोनों तरफ thymus पूरी अच्छे खासे लोब्यूल दोनों तरफ मिलते हैं. मैं आप लोग को बताऊंगी. तो the thymus is extending from the cervical as well as to the cranial mediastinum. मिडल मीडियस्टाइनम में नहीं रहेगा thymus. It will be present only on cranial mediastinum. तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता है कि किस बच्चे ने कहाँ लिखा है thymus को. Thymus is present in cranial mediastinum. और यही पार्ट है जो कि that will remain in after the means animal get developed. ठीक है ना. Thymus का यही पोर्शन है जो कि आपको मिलेगा बाद में. बाकी the whole part get vestigial. पूरा मतलब the cervical part get lost. ठीक. So here the thymus is present. The cranial mediastinum is displaced to the left side because of the large volume of the apex of the cranial lobe of the right lung. अच्छा, हम बोलते हैं mediastinum, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मिडिल में है एकदम. क्यों? Because the right pleural sac is larger than the left pleural sac. अभी बताया. और right pleural sac और left pleural sac की जो conformity है, that is not a uniform conformity. मतलब ये जो मीडियास्टाइनल स्पेस है ये कोई रेगुलर स्पेस नहीं है, कहीं पर आड़ा तिरछा स्पेस है. ये समझ में आ रही मेरी बात? तो यही क्या बोला है, द क्रेनियल मीडियास्टाइनम इज डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड. अगर आप एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटोगे तो हियर यू कैन सी जो क्रेनियल मीडियास्टाइनम स्पेस होगा वो उसका दैट विल बी मोर टू द लेफ्ट साइड. Because it is displaced to the left side because of the large volume of apex of the cranial lobe of the right lung. बात समझ में आ रही मेरी? ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? देखो रिपीट करता हूं दोबारा. देखो हम अगर अपने में इमेजिन कर रहे हो आप एनिमल तो आप लोगों ने अभी परसीव ही नहीं किया है. आप अपने आप में इमेजिन करें तो ऐसा नहीं है कि जो आपका मीडियास्टाइनम है वो एकदम बीचों बीच है. बोलते एकदम बीचों बीच है, ठीक है ना. इट इज but it is not at the middle line. अगर एकदम मिड लाइन में होता ना तो हम यहाँ से अगर सेक्शन काटते लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है. Why? Because right pleural sac is larger, because right lung is larger. So here this cranial mediastinum is displaced to the left side. क्योंकि right वाला बड़ा है ना तो ये कहाँ displace हो गया? It is displaced to the left side because of large volume of apex of cranial lobe of right lung. ठीक है. Now the middle mediastinum contains heart, esophagus, trachea, pulmonary vessels, aortic arch, thoracic duct, azygous vein. हेमाजाइगस याद करो, बताया था ना जब हार्ट पढ़ा था. मिडल mediastinal and bronchial lymph nodes, vagus and phrenic nerves. अब ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए because you have to imagine all the things over here. आपको ये इनका रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. क्यों? मिडल मीडियास्टाइनम में हार्ट है, हार्ट तो होगा तो हार्ट के साथ सारे रूट होंगे. रूट ऑफ द ट्रंक्स विल बी प्रेजेंट इन द मीडियास्टाइनम. रूट ऑफ द ट्रंक क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट होगा. तो रूट ऑफ द ऑल द ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, एरोटिक आर्च विल बी प्रेजेंट ओवर हियर. फिर थोरेसिक डक्ट भी होगा. क्यों? क्योंकि वो सिस्टर्ना काइली के बाद पीछे से आ रही है ना थोरेसिक डक्ट. तो ये थोरेसिक डक्ट तो सब जगह मिलेगी, कॉर्डल में भी मिलेगी, मिडिल में भी मिलेगी, क्रेनियल में भी मिलेगी. ठीक है. देन एजाइगस वेन, हेमाजाइगस विल बी बिकॉज़ वो भी राइट इट इज कमिंग फ्रॉम द क्योंकि वो लंबार वाला कुछ पार्ट है, कुछ इंटरकोस्टल पार्ट है, वहां से ब्लड लेके आ रही है एजाइगस वेन. ठीक है. सो एजाइगस वेन विल बी ओवर हियर. देन लिम्फ नोड्स की अगर बात करें तो मैंने बताया ना तीनों में क्रेनियल, मिडिल, कॉर्डल हर जगह सेम लिखना है. मिडल मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स विल बी प्रेजेंट इन मिडल मीडियास्टाइनम एंड एज वेल एज हियर द ब्रोंकियल लिम्फ नोड एडिशनली बोल दिया.
ठीक, ब्रोंकियल क्यों? क्योंकि ट्रेकिया का बाइफर्केशन मिडिल मीडियस्टाइनम में होगा। हमने क्रेनियल मीडियस्टाइनम में क्यों नहीं लिखा ब्रोंकियल लिम्फ नोड? क्योंकि वहां केवल ट्रेकिया थी, वहां अभी बाइफर्केशन ट्रेकिया का नहीं हुआ था। So the tracheal bifurcation takes place at the middle mediastinum, so it is called the primary bronchi, and at the level of here there will be presence of bronchial lymph nodes. Then vagus, of course, vagus will be present over here, and the phrenic nerves will be present over here. Then caudal mediastinum, अब इमेजिन करो, ठीक है। अब मैं इसको स्लाइड को करती हूँ गुम, आपको बताना है क्या क्या होगा। चलो बताओ क्या क्या हुआ कॉर्डल मीडियस्टाइनम में, कोई भी। क्या क्या हो सकता है ऐसे बताना है रेंडमली। इशिता बताओ। इशिता, हाँ इशिता बताओ भाई, कॉर्डल मीडियस्टाइनम में क्या क्या हो सकता है रेंडमली बताओ। आवाज नहीं आ रही इशिता आपकी, तो अब देखते हैं हम आप लोगों ने जो बोला वो सही है कि नहीं। अब कॉर्डल मीडियस्टाइनम, अरोटा, अरोटा होगा, अभी बोला आपने। ईसोफेगस बोला, सही बोला। वेगस बोला, वेगस, हियर द वेगस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डोर्सल एंड वेंट्रल ट्रंक। पढ़ा होगा जब वेगस का कोर्स, है ना, तो पता हो, याद आएगा आपको, डोर्सल एंड वेंट्रल वेगल ट्रंक। कॉर्डल मीडियस्टाइन लिम्फ नोड्स, बिल्कुल सही। One large lymph node in the ruminant adjacent to the esophagus can cause obstruction if swelling occurs. ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा एक कॉमन कॉज है। आप लोग पढ़ेंगे ब्लोट, टिम्पेनी, जिसमें पेट फूल जाता है ना एनिमल का, सुना होगा ना, पेट फूल गया, Yes, ma'am. ब्लोट हो गया, टिम्पेनी हो गया एनिमल में। तो एक्चुअली एक वेगल टोन भी एक वर्ड होता है, वेगल टोन, मतलब जिसमें वेगस नर्व थोड़ा काम करना थोड़ा कम कर देती है, बिकॉज वेगस इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटिलिटी ऑफ द गट। ठीक है ना, हियर अभी नोटिस करना है आपको कि वेगस इज आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर, lymph nodes are also present over here, and esophagus is also present over here. ठीक है, क्या होगा, दो तीन चीजें हैं, दो इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये लिम्फ नोड डायरेक्ट ईसोफेगस को कंप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट मींस द लिम्फ नोड गेट एनलार्ज्ड and adjacent to the esophagus and can cause obstruction. Obstruction मतलब उसको कंप्रेस करेगा, esophagus को कंप्रेस करेगा। then also their eructation process will be disturbed. Eructation आप लोगों को पता है ना, ruminants में eructation process is required for release of gases. So that is also one cause of bloat. और सेकेंड चीज, दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ जो है, अगर lymph node को ने, if these lymph node compress the vagal nerve, then also it vagal nerve get reduce the gut motility. भाई नर्व अगर कंप्रेस होगी, नर्व सुना तो होगा आप लोगों ने, नर्व की कितनी सारी समस्याएं आजकल होने लगी हैं। शियाटिका सुना होगा ना, शियाटिका का नाम बहुत सुना होगा, उसको शियाटिका का प्रॉब्लम हो गया है ना, लंबा नर्व कंप्रेस हो रही है। ठीक है, जो बैक पेन, बैक वाले एरिया जो लोग हैं उनमें बोलते ना, उसकी स्लिप डिस्क हो गया, इसलिए वहां पर नर्व कंप्रेस हो रही है। तो अगर नर्व कंप्रेस होगा तो उस एरिया का जो फंक्शन डिस्टर्ब होगा। So here also lymph node get enlarged, vagus nerve को कंप्रेस करेगा, and that also may lead to the problem in gut motility, ruminal motility, also leading to the bloat, tympani. ठीक है, तो मतलब दो कारण हो गए यहाँ, अगर lymph node enlarge होते हैं तो दो कारण से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नाउ देयर आर फ्रीनिक नर्व्स, अभी बताया था बच्चे ने, फ्रीनिक नर्व मिलेगा। ठीक है, लेफ्ट फ्रीनिक नर्व मिलेगा, राइट फ्रीनिक नर्व कहां पर है, राइट प्लूरल सेक में है। देखो कितना क्लियर कट आपने लिखना है, फ्रीनिक नर्व बस नहीं लिखना है अकेला, यहाँ पर लेफ्ट फ्रीनिक नर्व लिखना है। क्यों? क्योंकि राइट फ्रीनिक नर्व इज प्रेजेंट इन द राइट प्लूरल सेक, इसलिए लेफ्ट फ्रीनिक नर्व लिखना है। और अगेन द mediastinum is displaced to the left as a result of larger size of right lung. ठीक है, तो ये हो गया mediastinum। अब किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। किसी
नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत प्रैक्टिकल डिस्कशन होने वाला है, एकदम प्रैक्टिकल। अब आप लोग तो फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो अब क्या है, अब बिल्कुल यहाँ एक्सपोजर नहीं मिला है, लेकिन वही किया करो। जो लोगों के पास स्टेथो है, स्टेथो जुगाड़ लेना। जो अपने एरिया से है, पहचान तो होगी। कभी स्टेथोस्कोप लगा के देखा है अपने कान में? यस मैम। देखा है स्टेथोस्कोप लगा के कान में कभी? अगर नहीं देखा है तो गो टू द क्लोजर, जो भी डॉक्टर हैं आपके परिचित के हैं, उनसे स्टेथोस्कोप मांगो, अपने कान में लगाओ। देन हियर योर हार्ट साउंड एंड हियर योर चेस्ट साउंड, दोनों साउंड सुनने की कोशिश करो अपनी पहले, ठीक है? तो स्टेथोस्कोप उठाना। अब हमने एनिमल का हार्ट साउंड सुनना है, एनिमल का चेस्ट साउंड सुनना है। सो व्हाट शुड बी द एरिया फ्रॉम वेयर वी कैन हियर द हार्ट साउंड एंड चेस्ट साउंड? सो दीज आर, यहाँ इसमें तो मैं अभी थोरेक्स का बता रही हूँ ऑस्कल्टेशन, लेकिन हार्ट ऑस्कल्टेशन में बता नहीं पाई उस समय आप लोगों को, जब हार्ट पढ़ा रही थी, तो वो भी आज ही बता दूंगी, ठीक है? तो ऑस्कल्टेशन ही कहला, दिस इज कॉल्ड ऑस्कल्टेशन, हियरिंग द साउंड ऑफ एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इज कॉल्ड ऑस्कल्टेशन, ठीक है ना? लिखा ना, क्लिनिकल ऑस्कल्टेशन ऑफ द थोरेक्स। ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या है? बिकॉज एवरी ऑर्गन हैज सम साउंड that is denoting the normal activity of that particular organ. If there is any deviation in their sounds, that predict something is going wrong, right? So this is useful for diagnosis of diseases. तो ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या है? आप उस वहां के साउंड सुनने की कोशिश कर रहे हो। अब साउंड सुनने की कोशिश में या तो डायरेक्ट कान लगाओ एनिमल के बॉडी के ऊपर, लेकिन वो नहीं सुनाई देगा, ठीक है ना? That is why we are using stethoscope for that. So now, which area has to be chosen for auscultation of the thorax? So now we see that the auscultation area, पहले हम डायग्राम देखेंगे, फिर इसके बाद हम राइट अप पे जाएंगे। ये जैसे हॉर्स में है, हॉर्स में आप देखोगे ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ना, पूरी लाइन ड्रॉ की गई है, ये लाइन जो ड्रॉ की गई है, ये एरिया को डिपिक्ट कर रहा है, डिपिक्टिंग द एरिया ऑफ ऑस्कल्टेशन ऑफ थोरेक्स। थोरेक्स को अगर आपने एक्टिविटी, लंग्स की एक्टिविटी को एक्सप्लोर करना है, तो यू हैव टू बी गो थ्रू दिस एरिया। अब ये इस एरिया को कैसे हम मार्क करेंगे? बाय यूजिंग सम लैंडमार्क। कैसे? यहाँ जो चीजें दिखती हैं बाहर से दिखती है ना, मतलब एनिमल खड़ा है, लेकिन हम इंटेस्टाइन तो देख नहीं सकते, लंग्स तो देख नहीं सकते, पर हम जो एक्सटर्नल एरियाज के थ्रू उसको एक इज्यूम कर सकते हैं, यस दिस इज द लिमिट ऑफ द लंग, यस हियर द हार्ट विल बी प्रेजेंट। तो सो यू कैन सी द स्कैपुला स्पाइन इन एनिमल, ठीक है ना? तो इफ यू हियर यू सी दिस इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, डोर्सल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला कैन आल्सो बी विजिबल, ओलेक्राइन प्रोसेस भी आपको विजिबल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कोस्टल आर्चेस, मतलब जो रिब्स हैं, रिब्स भी दिखती हैं एनिमल्स में, तो आपको ये दिखेगा कि हाँ ये देखो रिब्स जो खत्म हो रही हैं यहाँ पर, और ये जाके यहाँ सारे स्टर्नम पे मिल रही हैं, ठीक है ना? So here you can also visualize the coastal arches. You can see the tubercocci. So you can use these landmarks for making the area for auscultation of lung. अब हम पढ़ते हैं, देखो पहले इस डायग्राम में देखो, एक तो बन रही है डोर्सल बॉर्डर, ये क्या बन रही है? क्रेनियल बॉर्डर, एंड दिस इज कॉल्ड वेंट्रल बॉर्डर ऑफ ऑस्कल्टेशन। एक ट्राइंगल इज फॉर्म ओवर हियर, दिस ट्राइंगल, ठीक है? चलिए तो देखते हैं हम कैसे कैसे बनेगा। The cranial boundary will be formed by drawing one line from the caudal angle of the scapula to the olecranon process. अब हमने बताया ना, olecranon process भी आप फील कर सकते हैं, scapular border, dorsal border of scapula भी आप फील कर सकते हैं. So now you can make an imaginary line from caudal angle of scapula to the olecranon. Then dorsal boundary will be formed by a line drawn from the caudal angle of scapula to the tubercocci. तो वो आपने dorsal limit define कर लिया. फिर
जो वेंट्रल बाउंड्री है, कॉर्डोवेंट्रल बाउंड्री, दैट विल बी फॉर्म बाय द कोस्टल आर्चेस. अभी देखा था हमने उसमें डायग्राम में. It is formed by a line from the olecranon to the penultimate intercostal spaces, which is said to represent the basal border of the lung. This line is straight in case of ox, but well curved toward costal arches in case of horse and dog. कौन सी line? ये line. This line is curved in case of horse and dog. बाकी अगर हम उसमें देखेंगे ऑक्स में तो ये एकदम स्ट्रेट होगा, जैसे ये दोनों लाइन स्ट्रेट है. ठीक है. ये वेंट्रल बॉर्डर है, इट इज डिपिक्टिंग द बेसल बॉर्डर ऑफ द लंग. ठीक है. इट इज डिपिक्टिंग लंग बेस. ठीक है. तो अब ये हमने ट्राइंगल एक ड्रॉ हो गया है. अब हम स्टेथोस्कोप का बल्ब जो है वो कहाँ रखेंगे तो हमें कौन सी एक्टिविटी समझ में आएगी. ठीक है. अगर इफ वी पुट द bulb of stethoscope at the lower third area of it, then it represent the area of cardiac dullness. ठीक है. If we put it at the middle third, that is used for bronchial sounds, and if we put it at upper third, it is used to auscultate vesicular sounds. Vesicular sounds मतलब alveoli की एक्टिविटी, bronchial sounds मतलब जो ब्रोंकाई होती है लंग्स में उनकी एक्टिविटी को डिनोट करेगा. बात समझ में मेरी आ रही कि नहीं? पहले ये बताओ. यस मैम. समझ में बात. देखो एक तो ये एरिया है, ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया. तो यहाँ अगर आपने स्टेथोस्कोप का बल्ब रखा तो वेसिकुलर साउंड्स मिलेंगी, यहाँ रखा तो ब्रोंकियल साउंड्स मिलेंगी, यहाँ रखा तो दिस विल बी द एरिया ऑफ कार्डियक डलनेस. बात समझ में आ रही? तो देयर आर 3 एरियाज. तो पूरे एरियाज को 3 एरिया में डिफाइन किया. अब हम उसको अगर हमें एक्टिविटी को आइडेंटिफाई मिलेगा तो ये प्रॉब्लम है. एंड इट रिक्वायर अ क्वाइट प्रिसीजन, अ क्वाइट प्रैक्टिस. ठीक है ना. तो इजी नहीं ये चीजें, काफी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. अच्छा, और यही हम मैं आपको ये भी बता देती हूँ, हार्ट साउंड अगर सुनना है तो आपको कहाँ रखना है? जस्ट अबव एंड बिहाइंड द एल्बो इन द लेफ्ट साइड. हार्ट साउंड सुनने के लिए हमें लेफ्ट साइड पे ही जाना पड़ेगा, बिकॉज इन द लेफ्ट साइड द कार्डियक नॉच इज एक्सटेंसिव. अभी बताएंगे कार्डियक नॉच क्या है. इसलिए हार्ट का जो ज्यादा वाला पार्ट है, द मोर पार्ट ऑफ द हार्ट इज एक्सपोज फ्रॉम द लेफ्ट साइड. तो हमें कहाँ जाना है? एनिमल खड़ा है, सबसे पहले एनिमल की लेफ्ट साइड पे पहुंच जाओ. अगर किसी ने कहा है हार्ट साउंड सुनना है, अगर राइट साइड पहुंच गए तो वहीं आपने चांटे पढ़ने हैं. तो आपने पहले एनिमल की लेफ्ट साइड पहुंच जाना है. फिर आपने स्टेथोस्कोप फंसाया, फिर बल्ब है को आपने कहाँ रखना है? ले जाके एकदम रखोगे कहाँ? चेस्ट में ही रखोगे ना भाई. लिम्ब पे तो रख नहीं दोगे. लिम्ब में कहाँ रखोगे? किस लेवल पे रखोगे? खड़ा है ना एनिमल, ओलेग्रेनन प्रोसेस के जस्ट ऊपर एंड बिहाइंड. बिहाइंड मतलब उसके पीछे ही रहेगा ना, क्योंकि आपको थोड़े से वॉल पे रखना है ना बल्ब. तो ही दिस विल बी द एरिया फॉर द ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट, फॉर द एरिया ऑफ ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट. अब एक टर्म होता है सेंटेसिस. ये शायद मैंने पढ़ाया था सेंटेसिस थोड़ा सा उस दिन, तब जब मैंने हार्ट पढ़ा रही थी. पेरिकार्डियो सेंटेसिस बताया था ना बच्चों. पेरिकार्डियो सेंटेसिस बताया. अब हम चलते हैं थोरेकोसेंटेसिस के बारे में. अब पेरिकार्डियोसेंटेसिस हमने तब पढ़ा था. अब हम थोरेकोसेंटेसिस सेम मीनिंग, प्लूरल एफ्यूजन. बोलते ना लंग्स में पानी भर गया, तो लंग्स में पानी क्या भर गया? लंग प्लूरल कैविटी में भी पानी भर गया, ऐसा बोलते हैं, है ना. कई सारी कंडीशंस होती हैं. If you want to diagnose what type of fluid is present in the pleural sac, और उसके डायग्नोसिस से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी कि किस टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है. तो वो ट्रीटमेंट में भी आपको पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ट्रीटमेंट की, किस टाइप की एंटीबायोटिक्स चलानी है. ठीक. सो फॉर दैट रीजन द थोरेकोसेंटेसिस हैज टू बी परफॉर्म. आप थोरेकोसेंटेसिस करने के लिए क्या करना है? The position in which the needle is inserted depends on whether there is a air or fluid present, but the basic technique is the same. आपको एयर को करना है सक कि फ्लूइड को करना है सक. The needle is inserted into the middle of the intercostal space. This is done to avoid the blood vessels and nerves that run down the caudal edge of each rib. मतलब इंटरकोस्टल स्पेस होगा, कहाँ होगा? बिटवीन 2 रिब्स.
तो इंटरकोस्टल स्पेस में भी एकदम बीचों बीच आपने नीडल इंसर्ट करनी है टू अवॉइड द कॉर्डल बॉर्डर ऑफ द रिब, क्योंकि कॉर्डल बॉर्डर ऑफ रिब हैज द passage of nerves as well as blood vessels. ठीक है, तो needle inserted at 45 degree angle towards parietal pleura, preventing the lung parenchyma from obscuring the needle lumen when aspiring is being performed. मतलब आपने नीडल उतनी ही अंदर डालनी है जितने में आपको लगे कि हाँ अब ये प्लूरा तक पहुंची है, और अंदर डालेंगे तो लंग तक पहुंच जाएगा ये। तो आपने नीडल थोड़ी ही इंसर्ट करनी है कि इंटरकोस्टल मसल को पियर्स करके, then it will pierce the parietal pleura, then you try to suck the, so if it reach to the pleural sac, then definitely the fluid will filled in the syringe, ठीक है ना। the animal should preferably be in standing condition, ठीक है। तो अब thoracocentesis तो आप कर सकते हो अगर कंफ्यूजन अवॉइड करना है कि हाँ पेरिकार्डियोसेंटेसिस और थोरेकोसेंटेसिस है ना, क्योंकि पेरिकार्डियोसेंटेसिस के अभी हमने पढ़ा 3, 4, 5 और यहाँ से उस तरफ से पढ़ा था हमने किस तरफ 4th एंड 5th, तो यहाँ 6th 7th इंटरकोस्टल स्पेस प्रेफरेबली हम ले लेंगे। तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन कि भाई ऐसा नहीं कि पेरिकार्डियल फ्लूइड आपने एस्पिरेशन कर लिया, तो दैट इज व्हाई टू अवॉइड कंफ्यूजन 6th और 7th इंटरकोस्टल स्पेसेस वी कैन यूज फॉर थोरेकोसेंटेसिस। बात समझ में आ रही मेरी बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दोनों इसमें क्या किया हमने, प्लूरल फ्लूइड को एस्पायरेट किया है, एंड टू एक्सपायरेट द प्लूरल फ्लूइड हमें ये गलती नहीं करना है कि पता चला हमने पेरिकार्डियल फ्लूइड एस्पायरेट कर लिया और फिर हम बोले नहीं ये तो प्लूरल फ्लूइड है। टू रिमूव दिस कंफ्यूजन you have to choose the area 6th and 7th intercostal space, right? चलिए, तो this is all about the mediastinum, pleural sac। अब क्या पढ़ना है हमें, लंग्स पढ़ना। तो लंग्स आप सब कल पढ़ेंगे, मतलब अब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें लंग्स हमने पढ़ना है, और लंग्स काफी इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो नो डाउट इजी जाएगा, है ना। अभी टाइम नहीं बचा है ज्यादा, नहीं तो अभी लंग्स पढ़ जाता। There are 4 lobes in the right lung and 3 lobes in the left lung, and the name of the lobe: apical lobe, cardiac lobe, diaphragmatic lobe and intermediate और accessory। intermediate को ही accessory बोलते हैं, intermediate lobe बोले या accessory lobe बोले, ठीक है ना। तो कौन कौन से लोब है फिर से नाम लेते हैं, apical, then cardiac, intermediate और accessory, and 4th number is diaphragmatic, ठीक है। तो कितने लोब हो गए, 4 लोब इन केस ऑफ राइट लंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लेफ्ट लंग, तो यहाँ पर कौन सा लोब नहीं होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे, एपिकल, कार्डियक, डायफ्रामेटिक। इंटरमीडिएट और एक्सेसरी विल नॉट बी देयर इन द लेफ्ट लंग, देयर आर सो 4 and 3। फिर यहाँ पर जो एपिकल लोब होगा राइट लंग का, दैट इज वेरी लार्ज, वेरी बिग एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो नाउ दिस क्लास हैज ओवर। लेकिन आप पढ़ाई करिए, एक तो वैसे